وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، معزز اور محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی انتہائی معروف اور مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الفجر کی چند ابتدائی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے رواں دواں ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس کے بعد جو محرم الحرام جو مہینہ آنے والا ہے وہ اسلامی سال کا پہلا اور نیا سال ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور یہ جو ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ایک اہم مہینہ ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے انتہائی حرمت والے قرار دیے. حرام 4 مہینے ہیں. اب حرام ہمارے یہاں جو بولا جاتا ہے اس کے معنی تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کا معنی گندے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں جو حرام کہا جاتا ہے محترم، احترام والے مہینے، عزت والے مہینے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی یہ محترم مہینے ہیں. تو 4 مہینے جو حرمت والے ان میں یہ ایک مہینہ ہے جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں ان کی جو فضیلت اور اہمیت ہے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. قرآن مجید کی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیری دنیا کے بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دیگر اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات بغیر قسم کے بھی کہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ان 10 دنوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی معزز اور محترم ہیں، اور وہ بھی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور شروع کے 10 ایام اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے ہیں، انتہائی غنیمت کے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذوالحجہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا سال میں 360 یا 365 دن ہوتے ہیں، آپ جو بھی شمار کر لیں. اس سال کے تمام ایام میں سب سے جو بڑے دن ہیں اور بڑے ایام ہیں، مبارک ایام ہیں، یہ 10 دن ہیں. سبحان اللہ. سال کے 365 دنوں میں سب سے محترم اور جو بڑے دن ہیں نا، یہ 10 دن 10 ذوالحجہ کے ہیں.
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی ایام اور دن اور مہینے آتے ہیں، یہی وجہ ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رمضان کا آخری عشرہ یہ زیادہ قیمتی ہے یا ذوالحجہ کا شروع کے 10 دن یہ زیادہ قیمتی ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راتوں کے لحاظ سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، چونکہ ان میں تاخیرات آتی ہیں، اور ایک تاخیرات لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، اور اس کی عبادت سبحان اللہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن جہاں تک ایام کی بات ہے سبحان اللہ، رمضان کا جو آخری 10 دن ہوتا ہے نا، ان 10 دنوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ 10 دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے ہیں۔ راتوں کی بات کریں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں قیمتی ہیں، لیکن اگر ہم ایام کی دنوں کی بات کریں تو ذوالحجہ کے شروع کے یہ 10 دن بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور ان کا مقابلہ دنیا کے کوئی بھی مہینہ ہو یا ایام ہو یا دن ہو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ان ایام میں جو بھی عبادات آپ کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اعمال حسنہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا اجر و ثواب ان دنوں میں آپ کی نیکیوں پر عطا کریں گے اتنا سال میں کسی اور موقع پر اللہ آپ کو اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ لمحہ لمحہ قیمتی ہے، گھڑی گھڑی یہ قیمتی ہے، منٹ منٹ یہ ہمارے لیے آپ کے لیے قیمتی ہے سبحان اللہ۔ ان دنوں میں آپ جو بھی نیکیاں کریں گے، آپ کی نماز، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا اجر عطا کریں گے جیسے کوئی سرحد پر کوئی مجاہد ہوتا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا ثواب عطا کریں گے، آپ کی نمازوں پر اللہ آپ کو اتنا ثواب دیں گے، آپ کے روزے پر اللہ آپ کو اتنا ثواب دیں گے، آپ کی تلاوت قرآن پر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب دیں گے۔ ایک جو غازی ہوتا ہے نا، غازی اللہ کی راہ میں لڑنے والا، وہ کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ان 10 دنوں میں جو کچھ ذکر و اذکار کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اعمال حسنہ کریں گے، اس غازی کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جانتے ہیں آج اس کا دوسرا دن ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر، بہت سارے مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ دنیا کے بہترین ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، کتنے مسلمانوں کو پتا ہے؟ اور دوسرا دن بھی آج ہم پار کر جائیں گے سبحان اللہ، آدھا دن گزر چکا ہے۔ سال کے بہترین ایام ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حوالے سے بے شمار احادیث اور سلف صالحین کے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، اذا دخل العشر، فرماتے ہیں اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، جب یہ ایام جب آتے تھے نا، عشر ذوالحجہ جب ان کو نصیب ہوتا تھا نا، اتنی شدید محنت کرتے تھے، اتنی شدید محنت کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم سعید ابن جبیر کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اور ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلف صالحین کے یہاں معمول تھا، سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ کانوا یعظمون 13 عشر، 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے سلف صالحین۔ ان 3 عشروں میں پہلا عشرہ عشر ذوالحجہ جب آتا تھا نا، اس کی بڑی تیاری کرتے تھے، عبادتوں میں لگ جاتے تھے، بندگی میں لگ جاتے تھے، تلاوت قرآن میں لگ جاتے تھے، ذکر و اذکار میں لگ جاتے تھے، فرائض کی پابندی میں لگ جاتے تھے۔ یہ پہلا عشرہ ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں، کہتے ہیں دوسرا جو عشرہ ہوتا تھا وہ رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ سلف صالحین بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اور تیسرا جو عشرہ ہوتا تھا نا، وہ محرم الحرام کا عشرہ، وہ بھی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اس میں یوم عاشورہ آتا ہے، صوم یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔
सल्फ़ सालिहीन के यहाँ 3 अशरों की बड़ी कद्र थी। उन 3 अशरों में ये अशरा जो हमारे दरमियान से गुजर रहा है और आज जिसकी दूसरी तारीख है, अगर मुसलमान गफलत की ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये बहुत अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अशरा हमें और आपको अता फरमाया है। सबसे पहले दिल में पुख्ता अज़्म करें, ये नियत करें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी 8 दिन और बाकी बचे हैं। इन 8 दिनों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला फराइज की पाबंदी करेंगे, नवाफिल का एहतमाम करेंगे, रोजे रखेंगे, सदका देंगे, खैरात देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की राह में कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको सीधे रास्ते की हिदायत देंगे। ये अल्लाह का ये वादा है। हमारा आपका काम है कोशिश करना, दीन की राह में मेहनत करना है और अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को सीधे रास्ते की अल्लाह ताला हिदायत देगा इंशाअल्लाह। तिलावत कुरान है, तस्बीह है, तहलील है, तहमीद है, तकबीर है, सदका और खैरात है, या इसी तरीके से रोज़ा है, ये तमाम आमाल सुभान अल्लाह इस अशरे में आपको अंजाम देने हैं। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यही वजह है जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा और ये बात मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि एक बात ये बताइए, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया का मैं नाम ले लूं, बहुत बड़े शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि एक बात ये बताइए, रमजान के आखिरी अशरों से बड़ा है ये अशरा कौन सा? अशरे दुल्हिज्जा। क्या वजह है, क्या सबब है? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हर आदमी गौर करेगा तो उसको पता चल जाएगा सुभान अल्लाह कि अशरा कितना बड़ा है। इन अशरे इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन इबादत को जमा कर दिया है ना, सुभान अल्लाह, साल में आपको ऐसी इबादत नहीं मिल सकती है। क्यों जानते हैं? कुर्बानी इसी अशरे में है, कुर्बानी यहीं पर आपको मिलेगा। इसी तरीके से यौम अरफा आपको मिलेगा सुभान अल्लाह, यौम तरविया मिलेगा जब हाजी लोग सुभान अल्लाह 8वें जिलहिज्जा को हज की तैयारी करते हैं और एहराम बांध करके निकल जाते हैं। यौम तरविया मिलेगा, यौम अरफा मिलेगा, यौम नहर मिलेगा, हज मिलेगा, उमरा मिलेगा सुभान अल्लाह, कुर्बानी है, मिना है, मुज़दलिफा है, ये तमाम चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? इसी अशरे में मिलेगी। और ये अशरा गुजर जाएगा तो साल में आपको ये तमाम इबादत नहीं मिल सकती है। इसलिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रमजान के आखिरी 10 दिनों से ज्यादा कीमती ये अशरा है सुभान अल्लाह। मैं इसी पर आपको जोर दे रहा हूं कि अगर आप इन अशरों की नाकदरी करेंगे, आपके जहन व दिमाग में इस अशरे की अहमियत नहीं आएगी, फराइज की पाबंदी नहीं होगी, सुनन नवाफिल का एहतमाम नहीं होगा, तिलावत कुरान की पाबंदी नहीं होगी, सदका खैरात नहीं होगा, तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों। मैं आपको बताऊं ये 10 अय्याम जो है ना मौसम ताआत है, ये 10 अय्याम जो है मौसमुल खैरात है, ये इताअत के ये मौसम है, ये खैरात के मौसम है, ये बंदगी के मौसम मेरे भाइयों। इन अशरों में और इन 10 दिनों में सुभान अल्लाह हमारा और आपका जो मामूल होना चाहिए, मैं कुछ नेकियां आपको मैं गिनाता हूं, ये नेकियां हम और आप बराबर पाबंदी से करें और इन 10 दिनों में खास तौर पर इनका एहतमाम करें। उनमें सबसे पहली चीज है फराइज की पाबंदी, नवाफिल का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, तिलावत कुरान की कोशिश करें। अगर आप रोजाना सुभान अल्लाह 3 पारा अगर आप पढ़ेंगे ना, 10 दिनों में आपका कुरान खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। कितने? 3 पारे अगर आप रोजाना पढ़ेंगे और 3 पारा आपके लिए मुश्किल नहीं है तो इस अशरे में इन 10 दिनों में आपका एक मुकम्मल कुरान खत्म हो जाएगा मेरे भाइयों। इसी तरीके से वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक, वालिदैन के दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक कीजिए, सिला रहमी कीजिए, सलाम को आम कीजिए, खाना खिलाइए, सुलह कराइए मेरे भाइयों, भलाई का हुक्म दीजिए, लोगों को बुराई से मना करो, लोगों को बुराई से रोकिए, जुबान की हिफाजत कीजिए, इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा करें, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करें, आपके घर में मेहमान आए मेहमानों की जियाफत करें, इसी तरीके से मरीजों की इयादत करें और इस अशरे में ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें मेरे भाइयों, दरूद भेजा कसरत के साथ मेरे भाइयों। मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मुसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी
माए बहने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो रोजे से हैं, दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कितने ऐसे लोगों को आप सुनेंगे कि जब वो फोन करके पूछते हैं कि जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है, हमने कहा क्यों, कहते हैं जुल्हिज्जा का चांद नजर आएगा तो हम रोजा रखेंगे। सुभान अल्लाह। आज भी अल्लाह के फजल करम से ऐसे मुसलमान मौजूद है हमारे माशरे में। और मैं आपको बताऊं, मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम मिला था, अल्लाह अकबर कुर्बान जाए, काना यसूमु तिसअ दिलहिज्जा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कभी कभी आप 9 दिन लगातार रोजा रखते थे, 1 से लेकर के 9 तक आप बराबर पाबंदी के साथ रोजा रखते थे। यही वजह है, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, शेखुल अरब वल अजम शेख अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आता है, उन्होंने एक मौके पर अपने दर्स में कहा, अपने खिताब में कहा कि लोगों को क्या हो गया है, उलमा को क्या हो गया, तलबा को क्या हो गया है, अवाम को क्या हो गया है। उलमा की जिम्मेदारी है, अवाम इसी तरीके से तलबा की जिम्मेदारी है, खुतबा की जिम्मेदारी है कि जब अशरे जुल्हिज्जा आए तो ये अवाम को बताना चाहिए, अवाम को अवाम में शौक पैदा करना चाहिए, अवाम में जज्बा पैदा करना चाहिए। उसी हवाले से मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि हमें और आपको इस अशरे की कद्र कीमत का अंदाजा हो। मैं आपको बताऊं, इन 10 दिनों में कसरत के साथ मेरी आपकी जिम्मेदारी है जिक्र अज़कार का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अय्याम बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, इनमें सबसे बड़ा जो दिन है वो यौमुन नहर है। सुभान अल्लाह, कुर्बानी का दिन है मेरे भाइयों। यही वजह है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फअक्सिरू फीहिन्ना अत्तहलील वत्तहमीद वत्तकबीर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन 10 दिनों में कसरत के साथ सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप इस अशरे में मेरे भाइयों कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और अल्लाह की बड़ाई बयान करें। और इस सिलसिले में एक आखिरी बात कह करके इंशाअल्लाह एक ऐलान पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये है मेरे भाइयों, इन्हीं 10 दिनों में मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने कहा यौमुन नहर है, ये सबसे बड़ा दिन है, कुर्बानी का दिन, ये सबसे बड़ा दिन है मेरे भाइयों। और इसी अशरे में क्या बताऊं मैं आपको, इस अशरे में अल्लाह ताला ने क्या क्या नेकियां रखी है, क्या क्या फजाइल रखे हैं, क्या क्या बरकत रखे हैं, क्या बताया जाए आपको। इन्हीं में एक बात पर मैं जोर दूंगा इंशाअल्लाह और अपने खुतबे को मैं समेटूंगा और आइंदा आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में आएंगी। वो ये है मेरे भाइयों, इन्हीं 10 दिनों में एक दिन है जिसको यौम अरफा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यौम अरफा जिसको कहा जाता है। क्या है यौम अरफा? बार बार आप सुनते हैं यौम अरफा, ये वो दिन है ना जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को मुकम्मल किया, दीन को मुकम्मल किया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने मुकम्मल किया। वो कौन सा दिन था? वो अरफा का मैदान, यौम अरफा, अरफा का मैदान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंटनी पर सवार हैं, ऊंटनी पर सवार है। जिब्रील अमीन आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आयात लेकर के आए और कहा, ऐ प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका दीन ये मुकम्मल हो गया है। कुर्बान जाए, यहूदियों को अफसोस होता था, नसारा रश करते थे, क्या इस्लाम है, क्या दीन है, अल्लाह ने इनके दीन को मुकम्मल कर दिया है। आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है वो इब्तिदा ना करे, वो इत्तिबा करें, इत्तिबा करें। आपको नई चीजें नहीं लानी है, बल्कि वो दीन जो छोड़ करके गए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको फॉलो करना है सल्लल्लाहु। और मैं बताऊं, यही यौम अरफा आपने क्या फरमाया? अल हज अरफा, अल हज अरफा। हज नाम है, क्या जानते हैं? पूरा का पूरा जो हज है ना, ये अरफात के मैदान में ठहरने का नाम है। मीना को नहीं कहा गया, मुज़दलिफा को नहीं कहा गया, खाने काबा के हुदूद को नहीं कहा गया, अरफा के मैदान में ठहरने को प्यारे नबी
नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज बतलाया है। यही वजह है कोई हाजी अगर कोई भी हाजी या हुज्जाज किराम अगर कहीं वो अरफा के मैदान में क़याम नहीं करेंगे उनका हज ये बातिल हो जाएगा। क्यों जानते हैं क्या कहा जाए? हज यौम अरफा इतनी बड़ी फजीलत वाला दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये पैगाम दिया है, नबी की तालीम रही है कि एक हाजी अरफा के मैदान में जोहर और असर, सारे हुज्जाज किराम से कहा गया जोहर और असर ये मिला करके पढ़ लें, ठीक है। अब एक हाजी तमाम हुज्जाज किराम जोहर असर मिला करके 12:30 बजे तक फारिग हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है? दुआ, सिर्फ दुआ। एक हाजी तमाम हुज्जाज किराम सफ़ेद कपड़े में मलबूस, हश्र का मंजर और हश्र का मैदान नजर आता है। अरफा के मैदान में 12:30 बजे 1 बजे जोहर असर की नमाज खत्म हो गई। उसके बाद हुज्जाज किराम जो हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह की कसम है जिंदगी में किसी को इतना मौका नहीं मिलता है, उतनी तवील तरीन दुआ करने का मौका नहीं मिलता है जितना अरफा के मैदान में मिलता है। आप कितनी दुआ यहाँ कितनी देर करेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा? बहुत मैंने कह दिया आधा 1 घंटे में उठ करके चले जाएंगे आप। अरफा के मैदान में हुज्जाज किराम जोहर असर जमा करने के बाद उसके बाद जो हाथ उठते हैं ना, रोना, गिड़गिड़ाना, तौबा, इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत, माफ़ी, रहम व करम, अल्लाह से फज़ल व करम का जो सवाल करते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने एतराज़ किया था ना मैं इंसान को क्यों पैदा कर रहा हूँ, ये ज़मीन में फसाद करेंगे। देखो ये आदम का बेटा है, ये मेरा बंदा है, अरफा के मैदान में हाथ उठा करके मांग रहा है, सवाल कर रहा है, मा अरादा हाउलाई, मा अरादा हाउलाई। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फख्र करता है, क्या चाहिए इसको, क्या मांग रहा है, ये क्यों रो रहा है, क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों तौबा कर रहा है, क्यों इस्तिग़फ़ार कर रहा है। अल्लाह की कसम है एक हाजी का जब अरफा के मैदान में हाथ उठते हैं ना, कभी असर शाम मगरिब तक के हवाले से बाज हाजियों के बारे में देखा गया है, सुना गया है, हाथ गिराना चाहे तो हाथ गिरते नहीं है, हाथ नीचे करना चाहे तो हाथ नीचे नहीं होते। वो रोना, वो गिड़गिड़ाना अल्लाह को इतना पसंद आता है। और इधर शैतान का ये हाल है, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अफसोस करता है कि आदम के बेटों ने तौबा कर लिया और मुझसे तौबा करने के लिए कहा गया, मैंने सरकशी की, अपने गालों को, अपने बालों को नोचता है, अफसोस करता है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी। और इंसान सुभान अल्लाह अरफा के मैदान में इस कदर तवील तरीन दुआ। यही वजह है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया अरफा के दिन अल्लाह तबारक व तआला कसीर तादाद में लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाए। और उस दिन की दुआ तौहीद पर मुश्तमिल है। वो दुआ आपने क्या फरमाया, कुल तो अना वन नबिय्यून मिन क़ब्ली खैरुद दुआई यौम अरफा। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन जो दुआ है ना वो यौम अरफा की दुआ है। नबी ने कहा, मैंने कहा, सारे नबियों ने ये दुआ पढ़ी है, आप भी दिल में मेरे साथ पढ़ ले। यौम अरफा की दुआ सारे नबियों ने पढ़ी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह की कसम है, जाओ इसका तर्जुमा उठा करके देखो, ये सारी दुआएं तौहीद पर मुश्तमिल है, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के एक होने पर, अल्लाह के माबूद सच्चा माबूद होने पर और अल्लाह तबारक व तआला के कुल कायनात पर कंट्रोल अगर किसी का है वो अल्लाह तबारक व तआला का है। ये दुआ पढ़िए। और इस दिन की दुआ यही वजह है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गैर हाजी है
نا, जैसे दुआ कर ले एक बार, अल्लाह हम तमाम को अपने घर की अल्लाह जियारत नसीब फरमाए, तमाम को अल्लाह हज और उम्रे की अल्लाह सआदत नसीब फरमाए. जो जा करके आए हैं उनके लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनके हज को हज मबरूर बनाए. आप जानते हैं जो गैर हाजी हैं इनसे क्या कहा गया है? गैर हाजियों को हुक्म दिया गया है, हाजी लोग रोजा नहीं रखेंगे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में पानी का प्याला लेकर के पिया, कहा हाजियों के लिए रोजा नहीं है, जो गैर हाजी है ना इनके लिए कहा गया है अरफा का रोजा रखें, एक दिन का रोजा रखें. नबी ने फरमाया जो आदमी एक दिन का रोजा रखेगा युकफ्फिर अस्सना अल-मादिया वल्लती क़बला, एक रोजा रखोगे अल्लाह 2 साल के गुनाह माफ करेंगे इंशाअल्लाह. 2025 और 2026 इंशाअल्लाह. बोलो कब रखना है ये? इख्तिलाफ में मत जाओ, ये उम्मत लड़ लड़ करके बुरा हाल है और लोगों ने लड़ाया है. इख्तिलाफ में मत जाइए, साफ सीधी बात है. कब रोजा रखना है? शनिचर को, हफ्ता को हमारी ईद है और जुमा को इंशाल्लाह रोजा रखना है इंशाल्लाह. हमारे लिए जो 9वीं तारीख 9वीं जिलहिज्जा है वो जुमा के दिन है. जुमा के दिन खास रोजा रखने से मना किया गया है, लेकिन ये रोजा जो हम रख रहे हैं ना 9वीं जिलहिज्जा की वजह से रख रहे हैं. इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, माए बहनें आई है, अल्लाह की कसम है आपके लिए पैगाम दूंगा मैं, जुमा के दिन सारे लोग यौम अरफा 9वीं जिलहिज्जा की नियत से रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की नियतों में इखलास पैदा फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए. और आखिरी में जल्दी से बात, मैंने कहा कुर्बानी के सारे मसाइल मैंने रोक दिए हैं, आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बात करूंगा मैं, चूँकि ये अशरा जिस गफलत से हम गुजार रहे हैं ना बहुत अफसोस हो रहा है. फजर में कहीं 2 सफ 2.5 सफ, यही नहीं इस मस्जिद का हाल नहीं है, यहाँ तो बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह कदर गनीमत है. आप सब मुबारकबादी के काबिल हैं, खुश ना हो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए. दीगर मसाजिद का ये हाल है, इतना कीमती अशरा गुजर रहा है, आप एक पारे की तिलावत ना कर सके, रोजा ना रख सके, सदका ना दे सके, खैरात ना दे सके, मरीज की इयादत ना कर सके, मजबूर के काम ना आ सके, इससे बेहतर दिन जाओ अल्लाह की कसम है तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा. सच है कि गलत है? मैं नहीं कह रहा हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है. और इसलिए आखिरी बात यह है कि जो लोग कुर्बानी का इरादा सबके सब नियत रखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी करेगा इंशाअल्लाह. बोलो अल्लाह पूरी करेगा. कुर्बानी का जानवर खरीद करके लाए हैं और कुर्बानी का इरादा है, उनके लिए ज़रूरी है, सिर्फ उनके लिए जिनकी जानिब से जानवर ज़बह किया जाएगा उनके लिए ज़रूरी है. चांद जैसे नज़र आ गया है, अब चांद नज़र आने के बाद न नाखून तराश न बाल को कटवाएं, बल्कि परहेज़ करें, रुक कर इससे बाज आ जाएं. 10वीं ज़ुल्हिज्जा के यौमुन नहर के दिन आप जो है कुर्बानी करने के बाद या नमाज से फरागत के बाद आप अपने बाल और अपने नाखून तरशवाइए. ये हुक्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह. और दीगर जो जिन लोगों के पास कुर्बानी नहीं है वो चाहे तो बाल कटवा सकते हैं, नाखून तरशवा सकते हैं, वो भी छोड़ दें. तो आप यकीन रखें इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी सवाब देगा इंशाअल्लाह. ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है. अल्लाह रब्बुल